is away from you physically. So now it is over to Reverend Dr. Guy, who is connected with us on Zoom. Thank you, Bishop. I bring greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। How much I am grateful to our Bishop, Most Reverend Dr. Pradeep Kumar Samantaroy, and also the entire diocese of the Amritsar Diocese for inviting me and to be part of your worship together. मैं डायसिस ऑफ अमृतसर की तमाम कलीसियाओं के लिए और हमारे बिशप साहब बिशप प्रदीप कुमार समंतराय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज मुझे ये न्योता दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को दे सकूं। Today we have already read the scripture from Gospel according to St. Luke chapter 24 verses 13 to 35, and on the basis of this text we have chosen the theme as it has been assigned in the almanac, Witness to Christ's Resurrection. और आज जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 13 आयत से 33 आयत में पढ़ा, और जैसे कि हमारे लेक्शनरी में आज का थीम जो दिया गया है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के गवाह हम बने। Before we meditate upon this theme and the word of God, let us take time to pray. Let us. इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें। Loving God, you have given us word. As we meditate upon your word, we pray, O God, that you will talk to each one of us in your own way. In Christ our Lord, we pray. Amen. As you have seen, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी इबादत कर सकें और आपके वचन के ऊपर मनन कर सकें। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। As we have seen the theme, so this theme will break it into 4 P's. और आज का जो थीम हमारे लिए दिया गया है इसको हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, 4 P में बांटेंगे। 1 P is plight, 2nd P is perplexities, 3rd P is peace, and 4th P is proclamation. जैसे कि बताया गया है कि 4 P, पहला plight जैसे कि दुर्दशा, दूसरा विकल्प, तीसरा शांति और चौथा की घोषणा करना। And we would see, as we have noticed from the text, that these 4 P's are related to the event, and the event is from Jerusalem to Emmaus and from Emmaus back to Jerusalem. और जैसा कि हमने वचन में भी पढ़ा है और ये 4 जो हिस्से हमने बांटे हैं ये यरूशलेम से इमाउस की यात्रा को और उसके बाद इमाउस की यरूशलेम वापसी को दर्शाता है। And if we think that Christ is the center of this travel, then 2 are the side characters who played vital role in this text. और अगर हम यीशु मसीह को इसके मध्य में देखते हैं तो जो दोनों व्यक्ति इसके इर्द-गिर्द हम उन्हें पाते हैं। And these 2 persons, one has been named, the other has not been.
और इन दोनों व्यक्तियों को जो हम देखते हैं, इसमें से एक का तो नाम है, परंतु दूसरे का नाम इसमें नहीं दिया गया है। And the person who has been named is Cleopas. और एक व्यक्ति का नाम जिसका लिखा गया है क्लोपस। And sometimes this Cleopas creates confusion with Clopas, which has been mentioned in John chapter 29, verse 25. और जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 19 अध्याय उसका 25 वचन में भी एक और व्यक्ति जिसका नाम क्लोपास है, कई बार उससे हम धोखा खाते हैं। But we take precaution that we do not get confused, because these two persons are completely different identities. And here we are talking only about Cleopas. और हम इन दोनों नाम से ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति जो कि लूका की अंजील 24 अध्याय 18 वचन में और यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय 25 वचन में लिखे गए दो नाम, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। The second thing that we take note of is about the two cities. One is Jerusalem and one is Emmaus. और दूसरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं दो शहर जो इसमें लिखे गए हैं, पहला यरूशलेम और दूसरा एमाउस। And Jerusalem has been known as the place of sunrise, as we have noted it in Numbers 21:11. और जैसा कि गिनती की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 11 वचन में लिखा गया है, यरूशलेम जो कि सूर्य उदय की ओर दिखाता है। And Emmaus is just in the opposite direction, that is, it is towards the west. और जो कि एमाउस है वो उसके बिल्कुल विपरीत दिखाता है, जो कि सूर्य उदय सूर्य अस्त की ओर हमें दर्शाता है। So the setting here is that these two men, that is Cleopas and his companion, they were going from Jerusalem to Emmaus, that is from east to the west. और ये दोनों व्यक्ति क्लोपस और उसका साथी जो कि यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे, जो दर्शाता है कि वो सूर्य अस्त की ओर जो कि पश्चिम की ओर वो जा रहे थे। And so in this context we try to look at these 4 P's. और इस संदर्भ में हम इन 4 P जिसके बारे में हम ध्यान देंगे। Number 1 is the plight. और पहला है जो दुर्दशा या परेशानी। And so the question is, what was the plight of these two men? और हम देखेंगे कि इन व्यक्तियों के बारे में किनकी आखिर क्या ऐसी परेशानी थी, क्या ऐसी दुविधा थी। And we noted that the text begins with a simple phrase, on that day. और हम जब वचन को पढ़ा है लूका की अंजील उसका 24 अध्याय उसका 13 वचन जब हम देखते हैं, उसमें साधारण रूप से लिखा है कि उस दिन। On the same day means on the first Easter. और जिसका अर्थ है कि उसी दिन, ईस्टर के दिन, उसके पहले दिन। That means this Cleopas and his companion, they were spending the whole day in Jerusalem, and now it is towards the evening, they are returning back to their own home towards Emmaus. और ये बताता है, हम इसे इस प्रकार से देखते हैं कि जो क्लोपस और उसका साथी यरूशलेम में पूरा दिन उन्होंने बिताया, और जब दिन ढलने लगा तो वो अपने शहर की ओर, एमाउस की ओर वो जाने लगे। Now when they were returning from Jerusalem to Emmaus, they had 3 situations. One is they were logically perturbed. और हम देखते हैं कि जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे तो
तीन परिस्थितियों को हम यहाँ पर उनकी जिंदगी में देखते हैं। पहला कि वो तर्क रूप से व्याकुल थे। And what is this logically perturbed? So their question was, how come there was an empty tomb? Where was the body of Jesus? और वो क्यों व्याकुल थे इस सवाल से कि आखिरकार जो कब्र वो खाली क्यों थी और यीशु की जो देह है वो कहाँ थी। Second thing is that they were emotionally disturbed. और दूसरा कि वो मानसिक रूप से भी परेशान थे। And we see that they were disturbed emotionally because they were asking within themselves who to follow now, because Jesus is no more there. और वो इस बात से परेशान थे कि अभी हम किसके पीछे चलेंगे क्योंकि अभी यीशु मसीह तो नहीं रहा। And the third plight was that they were spiritually devastated. और तीसरा वो आत्मिक रूप से बिल्कुल बिखर चुके थे। And so they were asking themselves the question, was Jesus the true Messiah? कि क्या यीशु मसीह सच में मसीहा है? So when they were disturbed on these three issues, so they were going through the plight. And then we say that human plights work as deterrent to the divine peace. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो इस संकट में थे, इस परेशानियों में थे, तो जैसे कि कहा जाता है कि जो इंसान की व्याकुलता होती है वो परमेश्वर के अधीन, उसकी अलौकिकता के अधीन हमें बचाती है। The second P is perplexity. और दूसरा जो पी जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, परप्लेक्स, कि वो क्यों इतने व्याकुल थे, परेशान थे वो। And these perplexities or the questions of perplexities were asked by Jesus to these two men. और यीशु मसीह ने उन दोनों व्यक्तियों से पूछा कि तुम क्यों विकल्प हो, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? So the first question Jesus asked as a counter question to these two men, because these two men were disturbed. और यीशु मसीह ने उन दोनों व्यक्तियों से सवाल पूछा क्योंकि वो काफी परेशान थे। And Jesus asked them, what are you discussing among yourselves while walking? और यीशु ने उनसे पूछा कि तुम जब चल रहे हो तो आपस में क्या बातचीत कर रहे हो? In the Greek expression, there is a very interesting expression which cannot be, which has not been translated here properly. And this expression, if we translate properly, then it would be like this. Jesus is asking them, why do your face look so gloomy? और अगर इसको सही रूप से अनुवाद किया जाए तो यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुम क्यों निराश हो, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे मुंह क्यों उतरे हुए हैं? The second question that Jesus asked them is, what are the things? और दूसरा सवाल यीशु मसीह उनसे पूछता है कि क्या बात है, कौन सी बात है? लूका की इंजील 24 उसका 19 अध्याय के अनुसार। And he could guess that these people were going through three different issues. One is the absence of Jesus. और यीशु मसीह देखता है कि ये तीन ऐसे परिस्थितियों में से होके निकल के जा रहे हैं कि क्योंकि यीशु मसीह वहां पर मौजूद नहीं है। And the second one is the cruelty
that was inflicted upon Jesus, and yet he forgave them. और दूसरा, क्योंकि यीशु मसीह की जो सतावट के अनुसार उसे कलवरी क्रूस के ऊपर सूली पे चढ़ाया गया, और उसके बाद भी यीशु मसीह ने उन सबको माफ किया। And the third thing is, how come the tomb is empty? और तीसरा कि कब्र आखिरकार क्यों खाली थी। And the third perplexing question that Jesus asked to these two men was it not necessary that the Messiah should suffer these things and enter into his glory? और तीसरा सवाल यीशु इन दोनों व्यक्तियों से पूछता है, क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीहा अपने जिंदगी में इन सब दुखों को उठाए और आखिरकार अपनी अनंत काल की महिमा में प्रवेश करे। And on this third question, in fact, Jesus was trying to redirect them to the scripture, putting again three more issues. और यीशु मसीह उनका ध्यान पवित्र शास्त्र की ओर लेके जाता है, और जो आगे तीन सवालों को उनके सामने रखते हैं। That is, Jesus was trying to show them that they had the lack of faith. और पहला कि यीशु मसीह उनको दिखाना चाहता था, उनको बताना चाहता कि तुम लोगों में विश्वास की कमी है। They had the lack of knowledge of scripture. और उन्हें पवित्र शास्त्र को समझने में कमी है। And the third one is they had the lack of capability to understand and accept the scripture. और तीसरा कि उनमें कमी है कि वो पवित्र शास्त्र को समझें और उसे ग्रहण करें। And when with these three questions, these two men understood their real situations, they had the third P in their heart, and that is the peace in and with Jesus. और जब इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी परिस्थितियों में इन सब बातों को समझ लिया, तब तीसरी जो पी उनके मन में आया, जो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु की शांति उनके अंदर और उनके साथ। So they had four different ways towards this peace. First one is that they became the good hearers of Jesus. और इन सब के बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर चार ऐसी बातें हुई। पहली बात कि वो एक सचमुच प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले बने। And if we look at our text, the previous verse, that is in verse 39 and 31, and we see that it was said that their eyes were closed, so they could not see. और अगर हम वचन को हम पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि 16वीं आयत में देखते हैं कि उनकी आंखें बंद थी और वो यीशु को नहीं देख पा रहे थे। But in 31 we see that their eyes were opened. और 31वीं आयत में हम देखते हैं कि उनकी आंखें खुल गई और वो सब कुछ देखने लगे। So when their eyes were closed, they could not see, and now their eyes are open, so they can see. और इन दोनों व्यक्ति जब इनकी आंखें बंद थी तब ये देख नहीं पा रहे थे, परंतु जब इनकी आंखें खुल गई तो ये देखने लग गए। So second thing they did is that they invited Jesus to stay with them. Again, we say for three reasons. और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रित किया कि उनके साथ रहे,
और ये भी आगे 3 बातों की और हमारा मार्गदर्शन करती है। Number one, because it was getting evening. पहली बात कि दिन ढल रहा था, शाम हो रही थी। Number two is it was their social culture and gesture to invite the guest if it gets evening. और दूसरा कि ये उनका परंपरा थी, उनका जो रिवाज थे कि जब दिन ढल जाता है, शाम हो जाती, तो वो मेहमानों को अपने यहाँ पर आने के लिए न्योता देते हैं। And the third one is that is it was their own concept of humanitarianism and hospitality that they were possessing within themselves. और ये उनका जो मानवता के रूप में भी हम देखते हैं कि वो एक व्यक्ति को अपने घर में बुलाते हैं, और ये उनकी मेहमान नवाजी को भी दिखाता है जो उनके अंदर, उनके स्वभाव में थी। And the third thing that we see that they hosted Jesus for dinner. और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए आमंत्रित किया। And very surprising thing happened here when they sat on the table. और बहुत ही अद्भुत वहां पर हम देखते हुआ कि जब वो खाना खाने के लिए बैठे। Jesus was the guest, but he took the role of a host, and he did 4 things on the table. और बेशक यीशु एक मेहमान था, परंतु फिर भी उसने मेजबान का रोल अदा किया और उसने रोटी ली। And so what he did, he took bread, number 1, he blessed the bread, number 2, number 3, he broke the bread, and number 4, he gave it to them. और हम यहाँ पर देखते हैं लूका 24 उसका 30 में कि यीशु मसीह ने रोटी ली, दूसरी बात उसने उसे आशीषित किया, तीसरा उसने तोड़ी, और चौथा उसने उनको खाने के लिए दिया। So when Jesus as a guest played the role of a host, then the eyes of these 2 men were opened and they could see Jesus there, and they were overwhelmed that their Messiah is with them. और जब उन्होंने रोटी ली और उनकी आंखें खुल गई और वो बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने देखा कि उनका मसीहा उनके साथ है। So we move to the 4th P. और ये हमें आगे हमारा मार्गदर्शक बनती है और हमें चौथी पी की ओर लेके जाती है। And that is the proclamation of what they have experienced. और ये उस घोषणा की ओर लेके जाती है, प्रोक्लामेशन की ओर लेके जाती है, जिस बात का इन दोनों व्यक्तियों ने तजर्बा किया। And we have seen they have gone through 6 different stages, and because of these 6 stages, now on the 7th stage they have come, and now they realized that it is their responsibility that what they have seen and experienced they should proclaim. और हम इस अध्याय में देखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति 6 परिस्थितियों में से होके निकल के चले, और इन 6 परिस्थितियों के बाद एक 7वीं मंजिल तक वो पहुंचते हैं, और वो वहां पर पहुंच के इस बात को वो अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं कि जो कुछ उन्होंने तजर्बा किया उसकी घोषणा उन्हें करना है। So quickly we'll just go through these 6 stages. First one is they perceived Jesus. और हम They could see Jesus. हम फिर से इन 6 बातों की ओर देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से यीशु मसीह को उसको देखा। Number 2, they realized Jesus within and outside them. और दूसरा कि उन्होंने यीशु को अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द देखा।
Number 3 is that they were convinced within themselves and then they confirmed their own opinion. और तीसरी बात कि उन्होंने अपने मन में इस बात को ठान लिया और इस बात के ऊपर पक्का निर्णय लिया और फिर उसको दूसरों को बताने का और अपने एक दूसरे के साथ अपने जो निर्णय थे उसको भी बांटा. Number 4, they did not delay after seeing Jesus. और उन्होंने इस बात में बिल्कुल भी देरी नहीं की और जल्द से जल्द उन्होंने इस बात का निर्णय लिया जो कि चौथा तजर्बा दिखाता है. Number 5 is they went back to Jerusalem and they discovered 11 disciples. और फिर उसके बाद वो यरूशलेम गए और उन्होंने उन 11 चेलों से मिले, उनको ढूंढा. And number 6 is that they heard the testimony of Simon. और 6वीं बात कि उन्होंने साइमन पतरस की गवाही को सुना. And all these 6 stages helped them to stand on their own, and then only they could come out for the proclamation on the resurrection of Jesus. और हम इन सब बातों की 6 जो तजर्बे उन्होंने किए, ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार से उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि जो कुछ उन्होंने तजर्बा किया उस बात की घोषणा उन्हें करना है. As we are going through a very unprecedented context of India today and the entire whole world, that we are going through COVID-19 pandemic. और जब हम आज देखते हैं कि हमारा भारत और पूरा संसार कोविड-19 की परिस्थितियों में से होकर निकल के जा रहा है. So in this context we have seen 4 P's. और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हमने 4 P को देखा. How the disciples have experienced plights, perplexities, peace and proclamation. और किस प्रकार से उन चेलों ने जो परेशानियां देखी, जो व्याकुलता देखी और उसके बाद फिर उन्होंने परमेश्वर की शांति को और सबसे अंत में उन्होंने इस बात की घोषणा करने का जो विचार किया. So on this context we discover that we have to do 5 P's altogether. और इसके बाद हम जो 5वीं P की ओर हमें लेके जाता है. Number 1 is that in this context of COVID-19 we should have patience. और इसमें हम देखते हैं कि जो हमें सब्र रखना सबसे पहला हमें सिखाता है कि हम सब्र रखें. So we should have patience within ourselves, within the family. और हमें सब्र रखना है अपने आप में, अपने परिवारों में और एक दूसरे को उत्साहित करना है. Number 2, that we promote cooperation with the central government, local government, and even with the local administration. और हमें इस बात को उत्साहित करना है और एक दूसरे के साथ हमें समझौते के साथ चलना है कि हम अपने सरकार के साथ, अपने लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ और हमारे समाज में, हमारे देश में हमें आपस से तालमेल के साथ हमें चलना है. And number 3rd P is that we provide the necessities to the needy. और तीसरी जो P हमें जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को हमें उनको देना है जो उनकी जरूरतें हैं. And we know that our Diocese of Amritsar is doing so much in this field, so much. हम देखते हैं कि डायसिस ऑफ अमृतसर बहुत कुछ ऐसे वर्ग के लोगों के साथ कर रही हैं जिनको आज जरूरत है. And number
4, P is that we persist in action like this. और चौथा जो पी है, हमें जो क्रियाशील होना है और इसमें आगे लगातार कार्य करते जाना है। That means we go on persevering in persisting this action. और इसका अर्थ है कि हमें लगातार जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें लगातार हमें बढ़ते जाना है और भी आगे बढ़ चढ़कर हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। And the 5th and the last one is, last P is prayer. और अंत में मैं जो आखिरी की जो मैं कहना चाहता हूँ वो है प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। We should persistently pray that God sends His grace in the world and remove this corona for altogether, and the people might experience God's peace in their life and in the whole world. और हमें लगातार प्रार्थना में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर की शांति पूरे समस्त संसार के ऊपर बनी रहे और जो इस वक्त हालात बने हैं परमेश्वर उन सब हालातों को ठीक करे। So instead of experiencing plight and perplexities, by God's grace, we might experience peace and proclamation in our life. और जब हम इन दिनों में बहुत व्याकुलता को महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानियों को हम महसूस कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि इन हालातों में आप परमेश्वर की शांति को और इस बात की घोषणा भी करें कि परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी में हमें तजर्बा दिया है। May God bless each one of us to be faithful to Him. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको आशीषित करें और परमेश्वर की दया और उसकी कृपा हम सबकी जिंदगी के ऊपर बनी रहे। Amen.